हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स in this video. I'm Satnam Singh, your Punjabi teacher. Hope you all people are happy and enjoying these online classes in these days. So before starting today's topic, मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਵਾਈ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਵਾਈ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਾਵਰੰਗ ਭਾਰਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਓ। ਐਲਓ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ these learning outcomes, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਟਕ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਰ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਬੋਲਣੀ, ਲਿਖਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੈਨ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਵਾ, ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੇ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਖੜ ਕੇ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਥੀਮ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ
एक होर प्रैक्टिकली गल बच्चे जिहड़ी कि तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे फ्यूचर च काम आवेगी। तुसीं लोकां दे सामने अपने आप नूं बोल के अपने बारे दस सकदे हो। तुसीं डेक्लामेशन दे विच काबलियत रख सकते हो, तुसी काबल बनने के योग हो जाओगे, तुसी डेक्लामेशन दे विच योग हो जाओगे, तुसी स्टेज ते चढ़न के योग हो जाओगे, तुसी कविता पढ़न सुनन बोलन लिखण के योग हो जाओगे। पर बशर्ते 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 कि तुहाडे टाइम की इन्वेस्टमेंट जिहड़ी हैगी आ ओह दिलों होनी चाहिए है। दिलों 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 दिमाग तो होनी चाहिए है, दिलों होनी चाहिए है। तुसी एकजुट होके अपने दिलों जेकर इस टॉपिक नूं समझोगे तो सो बेटा आप टॉपिक की गल करिए, जिवें मैं तुहानूं पहले दस चुकिया कि अज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता। ये रचनाकार ने श्री गुरु रामदास जी, इस शब्द के रचनाकार श्री गुरु रामदास जी है। कावरंग पाठ पुस्तक के विचों लिया गया है। ये सिंपल शब्दों के जेकर मैं गल करा तुहानूं कि ये थीम की है, विषय वस्तु की है, विद्यार्थियों श्री गुरु रामदास जी ने मनुख नूं समझाउण दी कोशिश की है कि हे मनुख, हे जीव, हे आत्मा, हे मेरे मन, इस संसार दे चलाउण वाला परमात्मा इक्को ही है, सर्व कला संपन्न है। सो तुसी उसनूं छड्ड के मिथिहासक जिहड़ियां चीज़ां ने, मिथिहासक जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां दे मगर ना पै के अपना समा व्यर्थ ना करो। तुसी डायरैक्ट ही उस परमात्मा का नाम जपो जिस दे नाल तुहानूं सारे ही सुख प्राप्त होणगे अते तुसी इस संसार नूं, इस संसार रूपी भाव सागर नूं पार कर जाओगे, तुहाडी मुक्ति हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स। सो हुण आपां लाइन टू लाइन जिहड़ी हैगी है उहदी व्याख्या करांगे। व्याख्या का मतलब हुंदा वा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन एक्सप्लेन करना, माने इंसान जिहड़े विद्यार्थी जिहड़े हैगे आ या साडा समाज है उसके मैंटल लैवल है, उसके IQ लैवल के उत्ते, उसकी बोली के उत्ते जाके सौखे शब्दों के विच कविता या शब्द नूं दसना या समझाउणा ताकि उसदे समझ आ सके, ताकि जो मैसेज कवि या जो साडे गुरु जी देना चाहुंदे ने ओह उन्हां तक पहुंच सके। सो सब तो पहला अगर आप गल करिए ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले और प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग सहित व्याख्या तुसी पहला प्रसंग लिखोगे कि यह शब्द जिहड़ा हैगा साडी कावरंग, साडी 11वीं जमात की पाठ पुस्तक कावरंग दे विचों लिया गया है, जिसके रचनकार गुरु रामदास जी हैं और यह इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता सिरलेख के हेठ दर्ज है। इस शब्द दे विच गुरु जी सानू समझाउंदे ने कि इस संसार दे विच अगर आप गल करिए, इस ब्रह्मंड इस धरती की गल करिए तो परमात्मा एक है, सर्व कला संपन्न है। सानू होर मिथिहासक चीज़ों वाले जाण की लोड़ नहीं, अपना समा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं। हुण आपां बच्चे विद्यार्थियों आपां व्याख्या दे वल वधदे हां। सब तो पहला इस नूं असीं बोल के देखांगे किस तरीके नाल उचारी जाती है, किस तरीके दे नाल बोलना है, तुसीं सुनना भी किवें, समझना किवें, ध्यान दिओ। एक होर गल आ देखो, मैं नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 इस तरीके दे नाल मैं घट्टो घट 19 नंबर तक दी हुई है। ये तुसीं मतलब समझ सकते हो बच्चे कि जेडे औखे शब्द या नवे शब्द ने उन्हां दा जेड़ा सिंपल शब्द दे विच मतलब है मैं इत्थे लिखिया होया यू पीपल कुड टेक अ स्क्रीनशॉट। उस तो बाद भी तुसीं की कर सकते हो कि तुसीं वीडियो बार बार देखनी है, समझनी है, पेपर दे लई या किसी भी तरीके दी तुसीं उसनूं बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो। तुसीं लोग इसका स्क्रीनशॉट लै सकते हो और इसके जिहड़े औखे शब्द हैं लिखे हुए ने थल्ले उसनूं देख के समझ के तुसीं बार बार रिवाइज कर सकते हो और बार बार तुसीं वीडियो देख के उसनूं समझ सकते हो। यू पीपल कुड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है। सो हुण आपां अगे वधदे होए इस कविता दी शब्द की व्याख्या करते हाँ। ध्यान दिओ, इच्छा पूर्वक गुरु जी की कह रहे हैं, इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हरि जाके बसे है काम ते ना। सो ऐसा प्रभ ध्याइए मेरे जेड़ा ता सर्व सुख पावे मेरे मना। ध्यान दिओ, इत्थे की कह रहे ने गुरु जी, कह रहे ने कि इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता मतलब इच्छावां पूरीआं करन वाला अते सारे सुख देण वाला दाता। किहड़ा दाता? हरि, परमात्मा। परमात्मा नूं कहंदे हरि, परमात्मा। जाके बसे है कामते ना। इत्थे कामते ना कौन है? यह मन्निया जाता है, मिथिहास है कि स्वर्ग दे विच एक गऊ है जो कि सारियां इच्छावां पूरीआं करदी है। हुण ध्यान दिओ, इधर गुरु जी कह रहे हैं कि सारियां इच्छावां पूरीआं करने वाला ते सारे सुख देने वाला परमात्मा जाके वसिया है कामधेना विच। वो परमात्मा उस कामधेना दे विच भी है। जिवें आपां कहने हैं ना कि गॉड इज एवरीवेयर, हर पासे है ते हर इंसान दे विच, हर जी दे विच है। तो उस जी नूं बनाउण वाला कौन है? वो परमात्मा है। सो कामधेना नूं बनाउण वाला भी वो परमात्मा है। जिहड़ा संकल्प है वो भी उस परमात्मा ने ही बनाया है। सो इस करके सो ऐसा हरि ध्याइए मेरे जीड़ा ता सर्व सुख पावे मेरे मना।
ਤਾਂ ਫਿਰ हे ਇਨਸਾਨ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अर्थ दसे हुए ने, तुसीं अपने तरीके नाल लै सकदे हो। मैं अपने तरीके नाल तुहानूं सौखे तरीके नाल समझाउणा, मैं इधर देख के कोई गल नहीं करदा, ठीक है। गुरु जी कह रहे हैं कि जिहड़ी कहम ते ना इच्छावां पूरीआं करदी है, तुसीं मिथ्याहास है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ परमात्मा वसिया होया है, ਜਿਹੜਾ कि सारे सुख दिंदा है, सारियां इच्छावां पूरीआं करदा है। ਤਾਂ ਫਿਰ हे मेरे मना, तू सिद्धा उस परमात्मा ਨੂੰ क्यों नहीं ਧਿਆਉਂਦਾ? ਜੇਕਰ तू उस परमात्मा ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਰਬ मतलब ਸਾਰੇ ਸੁਖ, ਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸੰਸਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਆਲਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। हे ਇਨਸਾਨ, हे ਮਨੁੱਖ, ਹਮੇਸ਼ਾ जप मन, अपने मन नूं कह रहे ने, इंसान नूं कह रहे ने सतनाम, सच्चा नाम। किहड़ा सच्चा नाम है? सिर्फ परमात्मा दा नाम सच्चा है, तुहाडा मेरा दुनिया दा नाम सच्चा नहीं है। वो सच्चे नाम नूं ध्याओ, फिर की होएगा? हलत पलत मुख उजल होई। जेकर तुसीं उस सच्चे नाम नूं ध्याओगे तां की होवेगा? ध्यान दिओ। हलत पलत दा मतलब हुंदा वा लोक ते परलोक। लोक मतलब जिथे तुसीं दुनिया च रहिंदे हो, ते परलोक मतलब जदों इंसान कहंदे ने कि इत्थों दी संसारिक यात्रा भोग के उत्थे जांदा है, उहनूं परलोक, स्वर्ग, तुसीं कोई भी शब्द लै सकदे हो। कि जिहड़ा इंसान सच्चे परमात्मा दा नाम जपदा है, नाम सिमरन करदा है, गुरमुख है, ओहदी हलत पलत मुख उज्जल होई, ओहदा लोक ते परलोक दे विच नाम हो जांदा है। मुख उज्जल मतलब उजाला, आप कहते ना आया नया उजाला चार बूंदों वाला, तुसीं सुनी हुई। उजाला मतलब प्रकाश तो, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उज्जल होई नित ध्याइए हर पुरख निरंजना रहाओ। जिहड़ा इंसान उस परमात्मा का नाम जपदा है, सच्चे मनों जपदा है, नित जपदा है, ਉਹਦਾ ਲੋਕ परलोक ਦੇ ਵਿੱਚ प्रशंसा ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ नाम ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ है। जह हर सिमरन पाया तह उपाधि गत कीनी वड भागी हर जपना। ध्यान दियो, अभी अगे बोल दिए, जन नानक कहू गुर ए मत दीनी जप हर भव जल तरना। सो पहली लाइनां च कहंदे सी कि जेड़ा इंसान सच्चा नाम जपदा है ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। जह मतलब होंदा बेटा जिथे, आ देखो ध्यान दिओ, जह मतलब जिथे, जह हर सिमरन भया, जिथे परमात्मा दा सिमरन भया मतलब सिमरन कीता जांदा वा, जिथे सिमरन कीता जांदा वा, तह उपाधि, जेड़ा इंसान या जिथे परमात्मा दा सिमरन हुंदा है, तह उपाधि, उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, जिवें कह सकदे हैं, पदवी कह सकदे हैं। तह उपाधि मत दीनी, सॉरी, तह उपाधि गतकीनी। गतकीनी मतलब ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਪਦਵੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, तह उपाधि गत कीनी बट भागी हर जपना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तह उपाधि पदवी गत कीनी, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ परमात्मा का नाम जपदा है, वो तो पहला ही बड़े भागां वाला हुंदा है, लकी हुंदा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई इंसान नहीं हुंदा हैगा, बट भागी हुंदा है। सो उसनूं किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं हुंदी। सो एट लास्ट आखिरली लाइन दे विच गुरु रामदास जी की आख रहे ने इंसान नूं कि जन नानक कहो गुर। जन नानक, देखो गुरु नानक देव जी का नाम आया है, जरूरी नहीं कि नानक जी गुरु नानक देव जी ने लिखी है। इसका मतलब यह गुरु नानक देव जी साडे जिहड़े सीगे सिख धर्म के मोढी सी, उस दियां पैड़ां ते चलदे हुए ही सारे गुरु साहिबानां ने शब्द जिहड़ी हैगी, बाणी जिहड़ी हैगी आ लिखी है, उसी फिलोसफी, उसी विचारधारा दे उत्ते चलदे। सो की कह रहे हैं कि जन नानक कहो गुर ए मत दीनी। गुरु नानक देव जी ने या परमात्मा ने या गुरु ने या कवि जो सानू समझा रहे ने, की कह रहे ने
कि गुरु नानक कि हे इंसान नूं ये मत दे रहा की मत देनी जप हर भव जल तरना। जप जप मतलब वर्शिप या सिमरन, परमात्मा का नाम ते होना जपना, ठीक है। परमात्मा का नाम जप भव जल तरना। जे तू भव जल तरना है, भव जल मतलब संसारक यात्रा है, संसार की आवागमन जन्म मरण के चक्रां दे विचों जेकर तू निकलना है तो वट यू हैव टू डू। अगर आप अज की गल करिए, मैं तुहानूं की कह रहा कि प्यास बुझाउण दे लई पानी पीना पैंदा है, भुख शांत करन दे लई सानूं खाना खाना पैंदा है। उसे नहीं जेकर तुसीं इस संसार के भवजल विचों तरना है, संसारक यात्रा नूं मुक्ति प्राप्त करनी है, आवागमन तो बचना है, तो तुसीं उस परमात्मा का नाम जपो। यह सानूं गुरु जी मत दे रहे ने। जन मतलब जनता, लोक, टू द पीपल, जनता, मनुख, इंसान, जीव नूं कह रहे ने। नानक कहो गुर ये मत दी, गुरु जी ने सानू ये मत दी है। मत मतलब सानू टीच करना, अकल करना, समझ दी है। दीदी मतलब दिती। अगे जप मतलब नाम जप, हर मतलब हरी मतलब हर कह लो, हरी कह लो, उस परमात्मा का नाम जपो। जेकर तुसी इस नूं भवजल नूं तरना है, जेकर संसारक यात्रा नूं खत्म करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो तुसी उसका नाम जपो। और जेकर इंसान उसका नाम जपेगा तो संसारक यात्रा जिहड़ी हैगी आ ओह आवागम जिहड़ा हैगा उसका खत्म हो जाएगा, उसनूं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इत्थे एक शब्द आया सी रहाओ, मैं उहदे बारे तुहानूं दस देवां। बच्चे रहाओ का मतलब हुंदा टू स्टॉप, ठहराओ। भाव कहने का मतलब हुंदा वा ठहराओ मतलब रुक जाना नहीं। इहदा इह हुंदा कि जदों कोई साडा पाठी साहबान जिहड़े हैगे साडे रागी साहबान जिहड़े हैगे जदों बाणी का उच्चारण करते ने तो वह की हुंदा, जदों रहाओ शब्द आउंदा उन्होंने इंटीमेट हो जाता, इंटीमेशन मिल जाता है कि अखीरली जिस लाइन के उत्ते रहाओ आउंदा है उस लाइन नूं टेक लैके, टेक पंजाबी शब्द है, या बेस बना के या इसे शब्द नूं इसे लाइन नूं लैके तुसीं बोलदे रहो। 2-3 बार लास्ट दे विच देखिया होना गुरबाणी दी लाइन बोली जाती है। उस लाइन दे विच की हुंदा वा कि शब्द का निचोड़ होंदा है, जिस करके रहाओ का मतलब है रुकना, ठहराओ। सो तुसी अगर मैं सिंपल शब्दों के हुण देखो, सिर्फ अद्धे मिनट दे विच अगर मैं क्विक गल करा, देखो ध्यान दिओ। इस दे विच क्या है कि हे मेरे मन, अपने मन नूं कहा गुरु जी ने कि सारे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि काम ते ना गौ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। अगर साडे इंसान दे विच परमात्मा है, पत्तियां दे विच, जीव निर्जीव दे विच परमात्मा है, आपां मनदे हां, तो उस काम ते इन्हां दे विच भी परमात्मा ही है, क्योंकि काम ते इन्हां नूं बनाउण वाला भी परमात्मा ही है। फिर तुसी डायरैक्ट उस परमात्मा, ऐसा प्रभ त्यागी मेरे जीरा तो सब सुख पावे मेरे मना, तो फिर तुसी क्यों डायरैक्ट उस परमात्मा का नाम क्यों नहीं ध्याते? जेकर तुसी उस परमात्मा का नाम ध्याओगे तो तुसी आत्मिक, संसारिक अते मानसिक सुख जिहड़ा हैगा सारे प्राप्त कर लवोगे। भाव कहने का मतलब यह है इस लाइनां दे विच कि हे इंसान, हे मन, तुसी दुनिया दे विच मिथ्यासक चीज़ां दे मगर ना पो, तुसी सीधा उस परमात्मा का नाम जपो, इधर उधर दी भटकना खत्म करो। जेकर तुसी परमात्मा का नाम जपोगे तो तुसी संसार दी यात्रा जिहड़ी हैगी आ उस नूं खत्म कर सकते हो, उसकी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, आवागमन तो रुक सकते हो। इस पैराग्राफ दे विच की कहा गया है कि हमेशा परमात्मा का नाम जपो, सच्चा नाम जपो। जेकर जिहड़ा इंसान परमात्मा का सच्चा नाम जपदा है, उसका लोक परलोक दे विच नाम हुंदा है, उसका नाम रोशन हुंदा है, जिहड़ा इंसान परमात्मा का नाम जपदा है। सो जिहड़ा इंसान परमात्मा का नाम जपदा है, सच्चा गुरसिख हो जाता है, उस नूं किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं हुंदी, किसी पदवी की जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि वह तो खुद पहला ही वड्डे भागां वाला है। जिहड़ा इंसान गुरमुख बन गया, गुरु का सिमरन करन लग गया। अंत दे विच गुरु जी कहंदे ने कि परमात्मा अगर गुरु जी अगर आप इस पहले के अकॉर्डिंगली गल करिए तो गुरु जी कह रहे हैं अंत दे विच कि सानू गुरु जी मत दे रहे हैं कि हे इंसान, तू परमात्मा का नाम जप, तुहानू मत दी जाती है। तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे संसार का आवागमन जन्म मरण जिहड़ा हैगा ओह खत्म हो जाएगा, तुहाडी मुक्ति हो जाएगी, आवागमन तो तुहानू दूरी हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तुसी मुक्त हो जाओगे, तुसी इस दुनिया में आन जान तो दूर हो जाओगे, तुसी परमात्मा दे लड़ लग जाओगे, तुसी परमात्मा दे पैरों दे विच, चरनां दे विच जाके विराज जाओगे। सो ये सी बेटा तुहाडे शब्द की व्याख्या। इहदे विच 1 नंबर वाले प्रश्न अते व्याख्या आ सकती है।
हर लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो किसी औखे शब्द का भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके ना। सो इस दे नाल ही आपां मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। जब तक तुसी खुश रहो, घर रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा वड्डियां दा सत्कार करते रहो, छोटियां नाल प्यार करते रहो, लोड़वंद दी मदद करते रहो, अपना ध्यान रखो। गर्मी ज़्यादा है, पानी पीते रहो, अपनी अखां दा ध्यान रखो, नेक दा ध्यान रखो, अपने माता पिता दा ध्यान रखो, उन्हां दी इज्जत करो, माता पिता दे कहे दे अनुसार चलो। सो जब तक मिलते हैं, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। खुश रहो, धन्यवाद।